Hello students, welcome to English grammar class. Our today's lesson is change of narration part 3. Today I am going to teach you how to change interrogative sentences into indirect speech. Changing direct speech into indirect speech. Today I am dealing with interrogative sentences. In my earlier class, assertive sentences have been dealt with. Now, what are interrogative sentences? Questions are interrogative sentences. All questions are interrogative sentences. Again, today I am telling my students they must know the different types of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, exclamative sentence, before they go to learn changing direct speech into indirect speech. If they have not learned what are interrogative sentences, they are asked to watch my video on different types of sentences. So, all questions are interrogative sentences. An interrogative sentence begins either with a helping verb like is, am, are, do, does, did, has, have, etc. or with a WH word like who, why, what, where, how, etc. So two types of interrogative sentences are. There are two types of interrogative sentence. Beginning with helping verb and another beginning with WH word. Examples are given here. First example is who are you? This is an interrogative sentence. It begins with WH word who. Number 2, is a ball round? This is also an interrogative sentence. It starts with the helping verb is. Now remember, in interrogative sentence that begins with WH word, the question demands information. But the interrogative sentence that begins with a helping verb like this is a ball round, it demands an answer either in affirmative or in negative. Now mark the difference between an interrogative sentence and an assertive sentence, or what is the difference between an interrogative sentence and assertive sentence. See the example here given. Is the earth round? Of course, it is an interrogative sentence. Now the below one, the earth is round. This is an assertive sentence. So what is the difference? Look, in the interrogative sentence, here in the example, is the earth, is helping verb, the earth subject. That is, in interrogative sentence, helping verb comes before subject. Now in the assertive sentence, the earth is subject, is verb. Here, helping verb comes after the subject. Remember this. In interrogative sentence, helping verb comes before the subject, and in assertive sentence, helping verb comes after the subject. Reverse. Is the earth? Here is the earth is reversed. The earth is. Is the earth? The earth is. This is the difference you remember. And when you go to change direct speech into indirect speech, always convert an interrogative sentence into an assertive sentence. मतलब आप जब नरेशन बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, माने इस फॉर्म में आपको लाना होगा. इस फॉर्म में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, आपको इस फॉर्म में लाना होगा. इस बात को जरूर याद रखिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा. नाउ रूल्स. पहले देखिए, इन द इनडायरेक्ट स्पीच all interrogative sentences are changed to assertive sentences.
मतलब आप नरेशन बनाने जा रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में तब्दील कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड, जैसे ही सेड, दे सेड, शी सेड, ऐसा सेड रहता है तो उसको हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में या इंक्वायर्ड। अब इंक्वायर्ड का दो स्पेलिंग है, INQUIRED और एक है ENQUIRED। अब इस इंक्वायर्ड को लिखिए या इसको लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब असर्टिव बनाएंगे तो सेड को हम आस्क्ड में और इंक्वायर्ड में तब्दील कर देते हैं। एक बात और याद रखिए कि आस्क्ड जो है, ये जो वर्ब है, इसके बाद यूजुअली जनरली जो है ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ही आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, आई आस्क्ड यू, इस तरह से अमूमी तौर पर इसको लिखा जाता है। और ये जो इंक्वायर्ड है, अगर आप इंक्वायर्ड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लाना चाहते हैं तो इसके साथ एक प्रीपोजिशन यूज करना होगा, इंक्वायर्ड ऑफ, जैसे आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि अगर आप चाहें तो इंक्वायर्ड के बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं भी रख सकते हैं, मतलब सिर्फ ही इंक्वायर्ड लिखकर फिर आगे जो है उसको चेंज कर सकते हैं। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा जैसा सेंटेंस रहेगा। अच्छा, अब देखिए रूल नंबर 3, व्हेन अ क्वेश्चन बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय वेदर और इफ। मतलब यहाँ क्या बात कहा गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे इज, आर, डू, डज, तब क्या होगा कि आस्क्ड के बाद या इंक्वायर्ड ऑफ के बाद हम लोग वेदर या इफ का इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट को याद रख लीजिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो वहां पर जो है वेदर और इफ का इस्तेमाल करेंगे। चौथा नंबर रूल क्या है, इफ अ क्वेश्चन बिगिंस विथ अ वर्ड द रिपोर्टिंग वर्ब इज फॉलोड बाय द सेम WH वर्ड। और अगर क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डिड यू कम, वाई इज द बॉल राउंड, इस तरह से WH में वेयर, वाई, हाउ से शुरू अगर होता है तो हम जब उसको रिपोर्टेड स्पीच को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसी WH वर्ड को ही रखना पड़ेगा। अगर हु से शुरू हुआ तो हु को रखेंगे, वेयर से शुरू हुआ तो वेयर को रखेंगे, व्हेन से शुरू हुआ तो व्हेन को रखेंगे, उसको रखेंगे। तो ये कुछ रूल्स है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स वर्कड आउट किया हुआ है। अब एक एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं और आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नंबर 1, बीरबल आस्क्ड द गर्ल व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, WH से शुरू हुआ है, तो कैसे चेंज हुआ आपसे देखिए कि बीरबल आस्क्ड द गर्ल। अच्छा, अब यहाँ पर तो आस्क्ड पहले से दिया ही हुआ था, इसलिए बीरबल आस्क्ड द गर्ल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। या अगर फर्स्ट के यहाँ पर अगर सेड टू रहता तो आप यहाँ आस्क्ड भी लिख सकते थे या इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते थे, यानी बीरबल आस्क्ड द गर्ल या बीरबल इंक्वायर्ड ऑफ द गर्ल। ठीक है, अब इसका ये काम खत्म हो गया यहाँ तक का। अब इसको हम शुरू करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये WH वर्ड्स है, तो इसको वर्ड से ही हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पर देखिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच में यू जो है सेकंड पर्सन है। अब आपको ये पहचानने होगा कि यहाँ पर जो यू है, यहाँ पर बीरबल है और यहाँ पर गर्ल है, ये यू किसके लिए आया है, इसी को आपका पहचानना है। मेन चीज यही है चेंज ऑफ पर्सन करने में। तो जाहिर सी बात है ये यू जो है गर्ल के लिए आया है, तो चूंकि यू गर्ल के लिए आया है माने रिपोर्टिंग वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग
हेल्पिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए आया है। या ऐसे भी पहचानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर यहाँ का यू यहाँ का कौन सा आदमी है, बीरबल है या गर्ल है। आपको माने क्लियर समझ में आ जाएगा तो ठीक बता दीजिएगा कि ये यू से मुराद यहाँ पर गर्ल है। तो क्या लिखेंगे हम, बीरबल आज द गर्ल हो गया। अब व्हाट, यहाँ व्हाट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको असर्टिव बनाएंगे, मतलब पहले वर्ब को लाएंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, सॉरी पहले सब्जेक्ट को लाएंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे। तो व्हाट तो हो गया व्हाट। अब यू गर्ल के लिए आया है तो शी हो गया, और आर का हो जाएगा वाज डूइंग। तो बीरबल आस्क्ड द गर्ल व्हाट शी वाज डूइंग। 2 नंबर देखिए, हु टाइड दिस टाइगर टू द ट्री, दे सेड। अब यहां पर देखिए कि यहां जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सन भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात है कि यहां जो दे सेड है, यहां पर दे सेड, इसके बाद ये यहां ये नहीं मालूम है कि किससे कहा गया है, दे सेड टू मी या दे सेड टू अस या दे सेड टू हिम, यहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा हालत में अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो सिर्फ आप यहां पर लिखिए कि दे इंक्वायर्ड। क्या लिखेंगे, दे इंक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर पर्सन कुछ नहीं दिया है कि माने रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ जो सेड है इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप उस झमेला से बचना चाहते हैं तो सिर्फ आप इंक्वायर्ड लिख दीजिए, बस हो जाएगा कि दे इंक्वायर्ड हो गया, इसका काम खत्म। अब हु से ये डब्ल्यू शुरू हुआ है तो हु रखेंगे हु। अब यहाँ देखिए हु टाइड है, सिंपल पास्ट टेंस में है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। तो हो गया दे इंक्वायर्ड हु हैड टाइड दिस का हो जाएगा दैट टाइगर टू द ट्री। नंबर 3 को देखिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, सेड ही। अब यहां पर देखिए ही आस्क्ड। अब यहां पर देखिए कि यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि ही सेड ही किससे कहा, मी से कहा या यू से कहा या हिम से कहा। तो यहां पर आप जो है मैंने 2 चीज कर सकते हैं, या तो अगर इंक्वायर्ड लिखकर इसको मैंने झमेला से आप बच सकते हैं कि हम मैंने ऑब्जेक्ट हम नहीं देंगे, या ऐसा कर सकते हैं आप इमेजिन कर लीजिए कि ही आस्क्ड मी, या ही आस्क्ड हिम भी कर सकते हैं, या ही आस्क्ड हर भी कर सकते हैं, या ही आस्क्ड मैंने कुछ भी कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर सेड ही नहीं के बाद नहीं दिया गया कि किससे मैंने उसने कहा, इसलिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी एक पर्सन हो सकता है। तो यहां पर जैसे हमने इमेजिन किया कि ही आस्क्ड मी, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, उसके बाद यहां पर अब ये हाउ हो गया, अब कैन आई है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ये आई किसके लिए आया है, ये आई आया है ही के लिए, ठीक है। तो हाउ ही कुड, कैन का कुड, हेल्प और आई का हो जाएगा मी हो जाएगा। तो आपको यहां पर पहचानना होगा कि यहां पर आई, अब देखिए यहां पर आई है, रिपोर्टेड स्पीच में 2 पर्सन है, एक आई है और यू है। अब इसको आपको पहचानने होगा कि यहां का आई ही है या यू, यहां पर कौन है ये आपको पहचानना पड़ेगा। तो हाउ कैन आई हेल्प यू, जाहिर सी बात ये आई ही के लिए आया है, ठीक है। तो हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ही आस्क्ड मी, हम यहां पर हम आस्क्ड मी कर दिए, ही आस्क्ड मी हाउ, आई ही के लिए आया इसलिए यहां पर ही हो गया, हाउ ही कुड हेल्प, ठीक है। यहां पर अब यू किसके लिए आ गया, मी के लिए आ गया, तो यहां पर हो गया मी, ही आस्क्ड मी हाउ ही कुड हेल्प मी। 4 नंबर देखिए, हाउ मच डज इट कॉस्ट, आई आस्क्ड। अब यहां पर देखिए कोई पर्सन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मैंने पूछा, यहां पर कोई पर्सन नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर हो गया आई आस्क्ड हाउ मच। अच्छा, चूंकि देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ये क्या हो जाएगा, तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो यहां पर आई आस्क्ड हाउ मच इट कॉस्ट। अब यहां पर देखिए डिड नहीं लिखेंगे, डिड लिखने से फिर जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब फिर वो माने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। याद रखिएगा इंट्रोगेटिव को हमको असर्टिव करना है। यहां पर अगर हम डिड लिख देंगे, हाउ मच डिड इट कॉस्ट, तो फिर जो है ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसलिए इसका हो जाएगा कि हाउ मच इट कॉस्ट। कॉस्ट सिंपल प्रेजेंट में भी कॉस्ट सिंपल प्रेजेंट है, कॉस्ट सिंपल पास्ट भी है और कॉस्ट
पास्ट पार्टिसिपल भी है। कॉस्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है। तो आई आस्क्ड, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई आस्क्ड के बाद यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हम नहीं भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हम नहीं भी दे सकते हैं। आई आस्क्ड हाउ मच इट कॉस्ट, अगर यहाँ पर दिया रहता कोई ऑब्जेक्ट तब यहाँ पर हम जरूर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया इसलिए यहाँ पर आई आस्क्ड कर दिए, या यहाँ पर आप आई इंक्वायर्ड भी लिख सकते थे। अब देखिए नंबर 5, स्वामीनाथन वेयर इज योर होमवर्क सेड सैमुअल। अब यहाँ देखिए सैमुअल जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच में स्वामीनाथन, जाहिर सी बात है सैमुअल स्वामीनाथन से पूछ रहा है, स्वामीनाथन वेयर इज योर होमवर्क सेड सैमुअल। तो अब देखिए कैसे हो गया कि सैमुअल आस्क्ड स्वामीनाथन, सैमुअल आस्क्ड स्वामीनाथन, या सैमुअल इंक्वायर्ड ऑफ स्वामीनाथन, हो गया। अब इसके बाद यहां दिया वेयर इज योर होमवर्क, तो वेयर से शुरू करेंगे। अच्छा, योर होमवर्क का क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क। योर किसके लिए आया है, स्वामीनाथन के लिए, तो क्या हो गया वेयर हिज होमवर्क वाज। अब इज का पास्ट टेंस हो गया वाज, इसको हम आखिरी में लिखेंगे, ठीक है। इज योर होमवर्क ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव हो गया, हिज होमवर्क हुआ ये असर्टिव हो गया। नंबर 6, अलीसिया आस्क्ड व्हाट इज द मैटर पापा। आप देखिए यहाँ पर अलीसिया किससे पूछ रही है, पापा से, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, पापा है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको बाहर निकाल कर लिखेंगे। तो हो गया अलीसिया आस्क्ड हर पापा, या अलीसिया इंक्वायर्ड ऑफ हर पापा। व्हाट को व्हाट रखेंगे व्हाट, अब इज द मैटर है उसको उलट देंगे, इज द मैटर है तो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा व्हाट द मैटर वाज। नंबर 7, व्हाट हैव यू रिटन फादर, स्वामी आस्क्ड। अब यहां भी जो है स्वामी किससे पूछ रहा है, अपने फादर से पूछ रहा है, ही इज आस्किंग हिज फादर। तो आस्क्ड का ये आस्क्ड रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया फादर, तो स्वामी आस्क्ड फादर व्हाट का व्हाट। अब यू किसके लिए आया है, यू किसके लिए आया, फादर के लिए आया है, ठीक है। व्हाट हैव यू नहीं, व्हाट हैव यू रिटन फादर, यू आया फादर के लिए आया, तो स्वामी आस्क्ड फादर व्हाट ही हैव का हो जाएगा हैड, व्हाट ही हैड रिटन। नंबर 8 देखिए, व्हाई इज ब्लड रेड सेड द टीचर। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर टीचर जो है किससे पूछ रहा है, पता नहीं है, नहीं ना दिया, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि टीचर किससे पूछ रहा है, तो उसको हम उसी तरह से छोड़ सकते हैं, सिर्फ इंक्वायर्ड कर देंगे या आस्क्ड कर देंगे। द टीचर इंक्वायर्ड या आस्क्ड हो गया। अब उसके बाद वाई इज ब्लड रेड, पहले वाई से शुरू कर देंगे, अब इज ब्लड रेड है इसको उलट देंगे, ब्लड रेड इज ब्लड है इसको उलट देंगे तो ब्लड वाज हो जाएगा, इज का वाज हो गया, वाई द ब्लड वाज रेड। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है, किसी तरह इसको कंफ्यूजन है, तो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन रेन एंड मार्टिन की किताब है जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई होती है, उसमें इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। वहां पर अगर किसी तरह का आपको डाउट है तो वहां पर देखो आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 9 देखिए, व्हेन विल द ट्रेन स्टार्ट सेड द पैसेंजर। अब यहाँ पैसेंजर का पता नहीं है किससे पूछा है, ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ लिख दिए कि द पैसेंजर इंक्वायर्ड या आस्क्ड, द पैसेंजर इंक्वायर्ड या आस्क्ड। व्हेन हो गया, अब विल द ट्रेन है तो इसका हो जाएगा द ट्रेन वुड स्टार्ट, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, माने सेड द टीचर, इस तरह से नहीं ना है द टीचर सेड टू मी बोलकर नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको इस कायदा से भी बना सकते हैं, इस कायदा से ही बना सकते हैं, जैसे यहां पर भी बना, ये भी एक कायदा है, सिर्फ द पैसेंजर आस्क्ड कर दीजिए या द पैसेंजर या द टीचर इंक्वायर्ड करके
फिर उसको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर दीजिए। अब देखिए एक और कायदा से उसको हम बना सकते हैं। जैसे देखिए 10 नंबर में सेंटेंस दिया है कि ही सेड हाउ इज योर फादर, ही सेड हाउ इज योर फादर। अब यहां भी देखिए कि ही सेड, उसने कहा, किससे कहा नहीं मालूम है, माने ही सेड टू मी और ही सेड टू हिम और ही सेड टू यू और ही सेड टू हर और ही सेड टू अस या ही सेड टू हर, मैंने कुछ यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए ही आस्क्ड हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी सेड रहेगा तो आस्क्ड लिखेंगे, ही आस्क्ड। अच्छा अब हाउ हो गया, ठीक है। अब यहां पर फर्ज कर लीजिए, यहां पर फर्ज कर लीजिए कि ही सेड टू मी है, फर्ज कर लीजिए। तो यहां पर अगर हम सेड टू, यहां पर अगर हम सेड टू मी, अगर मी को हम फर्ज कर लेते हैं तो योर फादर का, योर का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। और अगर ही सेड टू हिम कर देते हैं, हिम, तो हिम के लिए योर क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। और अगर ही सेड टू हर कर देते हैं, सपोज कर लीजिए कि ही सेड टू हर है, ठीक है, तो योर का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इसलिए यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया गया है। माने आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ही आस्क्ड हाउ माई फादर वाज, या ही आस्क्ड हाउ हर फादर वाज, या ही आस्क्ड हाउ हिज फादर वाज। ये आपके सपोजिशन के ऊपर, एजम्पशन के ऊपर कि आप क्या सोच रहे हैं। इस तरह से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको गलती नहीं करेगा, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या इमेजिन किया गया है। हमारी बात समझ में आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि he inquired when do you intend to pay me। अब यहां भी देखिए he inquired, यहां वर्ब है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट का पता नहीं है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। माने he inquired of her है या he inquired of me है, ठीक है। he inquired of me है या he inquired of her है, यहां कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको तस्वीर कर सकते हैं। जैसे पहले तो यहां लिख दिया कि he inquired when, अब यहां पर अगर हम he inquired of me, अगर इसको me हम मान लेते हैं तो you me रहेगा, तो you होने से यहां I हो जाएगा। और he inquired of him अगर यहां पर तस्लीम कर लेते हैं him, तो him और you होने से यहां पर he हो जाएगा। या he inquired of her अगर तो हम इमेजिन कर लेते हैं तो her और you होने से यहां पर she हो जाएगा, ठीक है। तो he inquired when I और he और she। अब यहां पर देखिए when do you intend, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस हो जाएगा। जब पास्ट टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, इंटेंडेड। इंटेंड का पास्ट टेंस इंटेंडेड, टू पे अमी का हो गया हिम। इसलिए कि मी जो है ही के लिए आया है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हैव यू नो मनी एट ऑल पापा, अलिसिया इंक्वायर्ड। अभी से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब तक WH वालों को हम पढ़ा रहे थे, अब यहां से दूसरे तरह का सेंटेंस आ गया। हैव यू नो मनी एट ऑल पापा, अलिसिया इंक्वायर्ड। अब अलिसिया इंक्वायर्ड, किससे इंक्वायर की है, पापा से, तो इंक्वायर्ड का ऑब्जेक्ट हो गया पापा। तो हम लोग लिखेंगे कि अलिसिया आस्क्ड पापा हैव यू नो मनी एट ऑल पापा। अब इसका देखिए जवाब जो है हाँ या ना में आएगा। पापा आपके पास पैसा नहीं है, अब अगर पैसा होगा तो बोलेगा यस, और अगर पैसा नहीं होगा तो बोलेगा नो। तो हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होता है उसका आंसर जो है या तो यस में और नो में हमको मिलता है। तो वैसा केस में हम लोग यहाँ पर इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, हम रूल में बता दिए हैं। तो देखिए हो गया अलिसिया आस्क्ड पापा इफ। अब यहाँ पर इफ लिख दिए। अब देखिए अब यू किसके लिए आया है, पापा के लिए आया है, ठीक है। तो यू आया पापा के लिए, तो हो गया ही। अलिसिया आस्क्ड पापा इफ ही हैव का हैड, इफ ही हैड नो मनी एट ऑल। आर यू फीलिंग अनवेल, फादर आस्क्ड। अब यहां पर देखिए फिर फादर आस्क्ड है। अब यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि फादर आस्क्ड मी या फादर आस्क्ड हिम, कुछ नहीं दिया हुआ है। इसलिए यहां पर इमेजिन करके हम कुछ भी लिख सकते हैं। फादर आस्क्ड इफ
अगर मी होगा, मी तस्वीर मी इमेजिन करते हैं तो हो जाएगा आई। फादर आस्क्ड इफ आई। अगर फादर आस्क्ड हिम है तो यहां पर हो जाएगा फादर आस्क्ड इफ ही। अगर फादर आस्क्ड हर है तो फादर आस्क्ड इफ शी, सी हो गया। और आर यू का हो जाएगा वाज, इफ यहां वाज हो गया, वाज फीलिंग, सॉरी यहां पर अनवेल लिखा हुआ था, यहाँ वेल हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। नंबर 14, फादर आस्क्ड हिम हैव यू नो स्कूल टुडे। अभी तो सिंपल है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया है, जैसे यहाँ दिया है, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो फादर आस्क्ड हिम, ठीक है, इफ या वेदर भी लिख सकते हैं, इफ। अब यहां पर देखिए यू है सेकंड पर्सन। अब यहां पर यू किसके लिए आया है, इसी को आपको ध्यान में देना, इसी को आपको समझना है कि यहां का यू फादर है या यहां का यू हिम है। तो जाहिर से बात है कि यहां पर यू कौन है, यू है हिम। फादर आस्क्ड हिम हैव यू, माने हिम से पूछा गया, तो फादर आस्क्ड हिम इफ। अब यू यहां पर हिम है तो सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, ही। इफ ही, हैव का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, इफ ही हैड नो स्कूल, और टुडे का दैट डे होगा। अच्छा एक बात याद रखेंगे आप, क्या हम जो इनडायरेक्ट स्पीच जो सेंटेंस बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच जो सेंटेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो ये आस्ट वाला जो पार्ट है, अलिसिया आस्ट पापा, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और यहां से ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, याद रखिएगा। तो चूंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज माने एक सेंटेंस, हम बार बार बता चुके हैं कि क्लॉज का मतलब सेंटेंस होता है, और सेंटेंस किससे बिगिन होता है, सेंटेंस बिगिन्स विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसीलिए यहां पर जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। मतलब यहां पर देखिए ये इफ, यहां से क्लॉज शुरू हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में सेंटेंस, तो सेंटेंस में हमेशा पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आ गया था, ही हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। नंबर 15, डज ही ऑलवेज scold the students, inquired father। अब यहां पर father inquired if, ठीक है, ये हाँ ना में आंसर आएगा कि क्या वो हमेशा स्टूडेंट्स को माने डांटते हैं, तो डांटता होगा तो बोलेगा यस, और नहीं डांटता होगा तो बोलेगा नहीं। तो inquired father inquired if he, चूंकि यहां पर ही थर्ड पर्सन है, इसे थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं हो जाएगा, इफ ही ऑलवेज। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट में, तो क्या हो गया, इफ ही ऑलवेज स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स। अब यहां पर डिड नहीं लिखेंगे, इफ ही ऑलवेज डिड लिखने से फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर हमेशा याद है कि यहां पर हमको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। असर्टिव सेंटेंस बनाने का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट हो गया ही, अब वर्ब क्या होगा, स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड। द फादर इंक्वायर्ड इफ ही ऑलवेज स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स। अब नंबर 16 देखिए, द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड विल नन ऑफ यू हेल्प मी। आज देखिए यहाँ पर नन ऑफ यू का मतलब हो गया, यहाँ पर प्लूरल है, एक आदमी नहीं है, बहुत सारा आदमी है। नन ऑफ यू 2 3 4 भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड, चूंकि यहाँ दिया हुआ इसलिए उसी को रखा गया, द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड वेदर या इफ, ठीक हो गया, वेदर नन ऑफ यहाँ पर देम होगा, ठीक है, इसलिए नन ऑफ देम होगा। अब यहां पर हो सकता है ना, द पुअर मैन सेड टू देम, नन ऑफ यू का मतलब क्या हुआ, क्या आप में से कोई भी एक, जाहिर से बात है 2 या 3 या 4 आदमी हो सकता है, इसलिए यहां पर हो गया द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड वेदर नन ऑफ देम, विल का वुड, हेल्प, मी का मी, ये मी आया है पुअर मैन के लिए।
आपको यही पहचानना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन रहेगा वो रिपोर्टिंग वर्ब में किस पर्सन के साथ वो आइडेंटिफाई आप उसको कीजिएगा। यहाँ का आदमी वहां का कौन सा आदमी है, इसको आप ठीक से पहचान जाएंगे तो आपसे गलती नहीं होगा। तो यहाँ का मी, यहाँ का पुअर मैन है, इसलिए मी है तो यहाँ पुअर मैन का हिम हो गया। ही सेड मे आई कम इन सर, ही आस्क्ड या ही इंक्वायर्ड ऑफ द टीचर। अब यहाँ पर ये जो बनाया गया है वो सर को जो है ना टीचर के लिए ले लिया है, टीचर को समझ गया कि हालांकि सर ऑफिस का बॉस भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है, ऑफिस का हेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो टीचर जवाब लिखा हुआ है तो बनाने वाला समझ रहा है कि यहाँ पर वो टीचर, इसे यहाँ पर टीचर दे दिया। ही आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ द टीचर। अच्छा, इफ हो जाएगा मे आई कम इन सर, इफ। अभी जवाब इसका यस नो में हो सकता है इफ। अब आई, यहाँ का आई कौन है, यहाँ का ही है। ही सेड मे आई, तो आई माने यहाँ का ही, तो इफ ही मे का माइट कम इन। या इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, अगर उस झमेला से नहीं बचना चाहते हैं कि यहाँ पर सर टीचर, सर से मुराद टीचर है या किसी बैंक का मैनेजर है या किसी ऑफिस का बॉस है, इस झमेला से आप बचना चाहते हैं तो सीधा ऐसे बना दीजिए कि ही इंक्वायर्ड इफ ही माइट कम इन। आप सर के झमेला से बच जाएंगे।